Is my screen visible to you? I think my screen visible to you. Yes. Okay. So in the last lecture, we are discussing decision tree algorithms, right? Is the screen visible to all of you or not? Yes, sir, visible. Yes, Okay, sir. thank you. Yes, sir. Okay. Some background noise is coming. If someone is there whose mic is, please mute yourself. Okay. So decision tree algorithms, we have seen that how it actually works. We have seen that we have some root node, and then what happens? The other nodes are being designed in such a way that we have our internal node as what? Some attributes, and the branch as some decision rules, and the leaf as our outcome. The things we have discussed, right? And also we have discussed that white box type machine learning algorithms and black box type machine learning algorithms. And we found that this decision tree is a white box type of machine learning algorithm. Okay, now let's see again how does this decision tree algorithms work. Okay, so basic idea behind this means behind how that decision tree algorithm works is as follows. Select the base attribute using attribute selection method to split the records. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We'll try to select the best attributes among those different attributes. We try to select the best one. वो कैसे करेंगे? With the help of ASM, and ASM stands for Attribute Selection Measures. और ये किस लिए हम कर रहे हैं? Why we are trying to select the best attribute? क्योंकि हमारा काम क्या है? पूरे रिकॉर्ड को split मतलब तोड़ के देखना है. We try to split the records to find out those levels. Okay, so select the best attribute using attribute selection measures to split the records. Second, make that attribute a decision node and breaks the data set into smaller subsets. जब हमने एट्रीब्यूट मतलब बेस्ड एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? उस पूरा डाटा सेट को स्मॉलर सबसेट में डिवाइड करेंगे. We will try to break the whole data set into smaller subset, and while doing that, we'll consider that selected attribute as a decision node. मतलब उसमें कुछ कंडीशन रहेगा, उसके बेसिस पे हम पूरे डाटा सेट को smaller subsets में divide करेंगे. Right? I hope this second step is clear. Then start tree building by repeating these processes recursively for every side until some conditions will match. All the tuples belong to the same attribute value, or there are no more remaining attributes, or there are no more instances. जब हमने एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस एट्रीब्यूट को डिसीजन नोड बना के डाटा सेट को डिवाइड किया स्मॉलर सबसेट्स में, लास्ट में हम क्या कर रहे हैं? ये चीज जो ये प्रोसेस है, इसको रिकर्सिवली रिपीट करते जा रहे हैं. रिपीट कर रहे हो मतलब क्या है? एक आपका पेरेंट नोड है, उस पेरेंट नोड से चाइल्ड नोड, उस चाइल्ड नोड फिर से नेक्स्ट स्टेप में पेरेंट नोड बन जाएगा, उस पेरेंट नोड से फिर से चाइल्ड नोड. So what we are trying to do, we are trying to create those parent and child nodes. और ये कब तक चलता रहेगा? When all the tuples belong to the same attribute value. एक कंडीशन, इन तीन कंडीशन में से कोई भी एक होगा तो हम क्या करेंगे? वो प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे.
राइट। पहला क्या है, ऑल द टुपल्स बिलोंग टू द सेम एट्रीब्यूट वैल्यू। अगर हमारे पास जितने टुपल्स हैं, टुपल्स अब जानते हो, मैंने डीबीएमएस में बताया था व्हाट इज टुपल्स। ठीक है, वो पार्टिकुलर रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं हम, या तो आप बोल सकते हो रो, जिसमें हर एक एट्रीब्यूट को कंसीडर कर रहे हैं हम। तो ये सारे टुपल्स अगर एक ही एट्रीब्यूट वैल्यू में कंसीडर किया जाए, मतलब एक ही वैल्यू में एंट्री कर रहे हैं, एक ही एट्रीब्यूट में, सॉरी, एक एट्रीब्यूट में क्या हो रहा है, दे बिलोंग टू सम ओनली वन पार्टिकुलर एट्रीब्यूट, हमें और फिर से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी उसका क्लास लेवल मिल गया। और क्लास लेवल क्या होगा, वो पार्टिकुलर एट्रीब्यूट जिसमें ये सारे टुपल्स बिलोंग कर रहे हैं, राइट। तो मेरा क्लासिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टॉप कर सकता हूँ। ये पहला कंडीशन, राइट। तो पहला जो कंडीशन, इस कंडीशन को कहा जाता है स्टॉपिंग कंडीशन। दिस कंडीशन which decides when to stop that algorithm is known as stopping condition, right? सेकेंड क्या है, देयर आर नो मोर रिमेनिंग एट्रीब्यूट। ऐसा आ गया कि आपके पास और एट्रीब्यूट है ही नहीं। जब एट्रीब्यूट ही नहीं है, आप कहाँ पे असाइन करोगे, राइट? कहाँ पे इस डेटा वैल्यूज को असाइन करोगे जब ऑलरेडी आपके पास एट्रीब्यूट्स नहीं है, यू हैव बीन लेफ्ट विथ नो रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स। ठीक है। थर्ड, देयर आर नो मोर इंस्टेंसेस। आप उसको क्लासिफाई करने के लिए आपके पास वो डेटा है ही नहीं, राइट। जितना डेटा था आप सभी को क्लासिफाई कर चुके हो, तो आप कोई इंस्टेंसेस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, वी कैन स्टॉप। तो ये जो प्रोसेसेस है, वन टू, सॉरी, स्टेप्स हैं 1 2 3। पहला वाला कौन सा, सिलेक्ट द बेस्ट एट्रीब्यूट यूजिंग एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स, फर्स्ट स्टेप, to split the records. Second step, make that attribute a decision node and breaks the dataset into smaller subsets. Second. Third, when to stop while doing the recursive procedure of building this tree, that these three conditions coming under it. So these are the steps based on which our decision tree algorithm works. I hope these three steps are clear to all of you. Well, I hope this is clear, so I'm moving ahead. Now look at this diagram. So you see that what's going on in this diagram, you have data, you already being introduced with test data and training data. ये मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या है, राइट। तो आपके पास ट्रेनिंग डाटा है, आपके पास टेस्ट डाटा है। आपको ये भी पता है कि हम जो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम बिल्ड करेंगे, मतलब जो क्लासिफिकेशन मॉडल क्रिएट करेंगे, किस डेटा के बेसिस पे करेंगे, दैट इज ट्रेनिंग डाटा। द ट्रेनिंग डाटा इज द डाटा by which we try to go for building our classification model. तो यहाँ पे क्या है, आपका डिसीजन ट्री एक क्लासिफिकेशन मॉडल है, राइट। तो फिर आपका ट्रेनिंग डाटा में ही ये डिसीजन ट्री जो हमने स्टेप्स पढ़ा अभी, वो सारे स्टेप्स बिलोंग करेंगे, राइट। डिसीजन ट्री जनरेशन, सिलेक्ट बेस्ड एट्रीब्यूट यूजिंग ASM, और ASM मतलब क्या था, एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर्स, राइट। और ये एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर में बहुत सारे मेजर्स आते हैं जो हम पढ़ेंगे। We'll go through every possible measure, every possible mean the best ones we'll discuss, right? Because ASM, याद रखना, ASM is the main criteria which will determine what type of decision tree actually you are working with. ठीक है? So we select base attribute using ASM such as information gain, Gini index और gain ratio. याद रखना, ठीक है? Then breaks the dataset into smaller subsets, recursively repeat the process for each child. इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो तीन प्रोसेसेस आपको दिख रहा है, एक्चुअली दो है और दो ही को हम रिपीट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम पेरेंट से चाइल्ड, उस चाइल्ड फिर से पेरेंट बन गया और उस पेरेंट से चाइल्ड, तो ये प्रोसेसेस कंप्लीट कंटिन्यूसली क्या होगा, रिपीट होता रहेगा, कब तक, सब ये जो तीन कंडीशन में से कोई एक सेटिस्फाई ना हो। ओके, जब सेटिस्फाई हो जाएगा, if one of these conditions satisfied, then we will stop. So this is how decision tree will be generated in the training data set, from the training data set. Okay, now when you have the decision tree model, the next step is what, you go for testing it.
और उसके लिए हमारे पास क्या है, टेस्ट डाटा है, ठीक है। और टेस्ट डाटा के जरिए आप क्या करोगे, आपके मॉडल को इवैल्यूएट करोगे। आप याद रखना, ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी पीजी में हो, रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहे हो, और कल को सपोज आप और हायर डिग्री में जाओगे, मे बी समवन ऑफ यू गो टू द डॉक्टोरल डिग्री, ओके, पीएचडी फॉर रिसर्च। तो याद रखना, जब हम इस टाइप का एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, उसके बाद एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते हैं, वहाँ पे भी आपको ये करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स मेजर्स, वो है एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल। You guys, please note down accuracy, precision, and recall. Now, today's first question to all of you. और ये क्वेश्चन ही मान के मत चलना, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करोगे, एक्यूरेसी को कैसे डिफाइन करोगे, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एक्यूरेसी, what is precision, what is the formula for calculating precision, and what is recall, and what is the formula for calculating recall. You will comment it, okay, and you will properly note down it, because this is very much important for you. Now you tell me, this diagram, is this the process, or is this the steps we discuss on the decision tree algorithm clear to you or not? Please quickly respond. So, Yes. so is the division in the on the basis of class like the attributes belonging to the same Sorry, classes are your kept on voice one side? your voice is breaking. Please repeat. So, তোমার is ভয়েসে the ভাঙি আইছে। division, হ্যাঁ, কোৱাচোন। so is the clear answer? Actually, it's not coming clearly. Please repeat again. So, हाँ, so is the division in uh, so it's made on the basis of class level. Like if the attributes belonging to the same classes are kept in one side and others in the other side. sorry, I have no, actually I'm not able to understand what you are saying, because voice is totally breaking. এটা কাম কৰা, you message me, okay? এতিয়া message Okay, কৰা, sir. I will check, okay? But Okay, text sir. message, not WhatsApp, okay? Okay, okay, sir. Okay. So so that's it. That is these are the steps involved in the decision tree algorithm. As I have said, that this is actually attribute selection measures which will actually determine what type of classification tree algorithm, or what type of classification tree or decision tree actually you are working with. Right. Now, that's why I'm focusing more on this attribute selection measure. So I'm coming to this. So attribute selection measure is a heuristic for selecting the splitting criteria that partition the dataset into best possible manner. क्योंकि आप सभी को पता है, जब मैंने ये डिस्कस किया था कि पहला स्टेप क्या है, हम एट्रीब्यूट सिलेक्ट करके रिकॉर्ड्स को स्प्लिट कर रहे हैं, राइट? तो ये सबसे पहला स्टेप है और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, और ये हम एट्रीब्यूट सिलेक्शन मेजर के जरिए कर रहे हैं, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, राइट? So it is also known as splitting rule because it helps us to determine breakpoints for tuples on a given node. Splitting rules, क्योंकि क्या कर रहे हो आप लोग, इसके जरिए आप डिवाइड कर रहे हो, इसलिए इसको splitting rule बोलते हैं, ठीक है? ASM provides a rank to each feature or attribute by explaining the given data set. Base score attribute will be selected as splitting attribute. राइट आप ये कैसे काम करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया है कि ये रैंक, हर एक एट्रीब्यूट को एक रैंक असाइन करते हैं, राइट? और आप क्या हुआ, आपके पास सपोज 100 है, उसमें से रैंक के बेसिस में जिसका स्कोर सबसे अच्छा होगा, उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, पूरे डेटा सेट को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, राइट? So base score attribute will be selected as a splitting attribute. Now,
In the case of a continuous valued attribute, split points for branches also need to determine or define. Most popular selection measures are information gain, Gini ratio, and Gini index. Sorry, information gain, जिसको हम एंट्रोपी भी बोलते हैं, क्या है मैं डिस्कस करूंगा, गेन रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, देन गिनी इंडेक्स. सबसे इंपॉर्टेंट जो दो आपको याद रखना है वो है एंट्रोपी और गिनी इंडेक्स. प्लीज नोट डाउन करके रखना, एंट्रोपी और गिनी इंडेक्स, और इन दोनों को आपको हर एक समय पे आप अगर इस एरिया में हो तो यू हैव टू अप्लाई दिस टू, राइट. सो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे विद सम न्यूमेरिकल्स. नाउ कमिंग टू इंफॉर्मेशन गेन. ठीक है, इस इंफॉर्मेशन गेन को मैं कभी कभी क्या बोलता हूँ, हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी, राइट. ये अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करूंगा मैं, इन हायर लेवल ये छोटे मोटे एग्जाम में तो पूछ लेंगे नहीं, ये या तो आपका एनटीए नेट एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं, पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या तो इसरो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है वहाँ पे ये पूछते हैं. ठीक है, एंट्रोपी क्या है, इंफॉर्मेशन गेन क्या है, याद रखना. शैनन invented the concept of entropy which measures the impurity of the input state. इस लाइन में मत जाना, कंफ्यूज हो जाओगे. अगर आप लोगों में से किसी ने शैनन्स थ्योरम पढ़ा है, इफ someone of you gone through शैनन्स थ्योरम, और ये कहाँ पे मिला था, क्या कोई मुझे बता सकते हो? इफ someone of you, if any one of you can tell me what is शैनन थ्योरम, और ये छोड़ो, मुझे ये बता दो किस सब्जेक्ट में मिला था ये. अब मैं जान जाऊंगा कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन लेवल है नेट के लिए या तो गेट के लिए कितना है, या तो इसरो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए कैसा है. प्लीज रेस्पॉन्स. हैव यू एवर लिसन्ड अबाउट शैनन थ्योरम एंड इन व्हिच सब्जेक्ट? सर वो शैनन सर वो थर्मोडायनेमिक्स में मिला था क्या? थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स का ही है, और एक अच्छे से याद करो, और एक सब्जेक्ट में मिला था. जस्ट अ मिनट, आई एम पिकिंग अप द फोन. हेलो हेलो, অ মই হেৰি লাইব্ৰেৰীত আছো, ক্লাছ লৈ আছো. তাৰ আগতে এৰিম, আফটাৰ আই থিংক 5 to 7 মিনিটছৰ পাছত মই এৰি আছো, আৰু 7 মিনিটমানৰ পাছত. ঠিক আছে ঠিক আছে. ক'ত আছা তুমি? ओके ओके ओके, श्योर श्योर श्योर. सॉरी फॉर द इंटर. हाँ अंकित, आप जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, बट उससे भी एक सब्जेक्ट जो आपका कंप्यूटर साइंस से पूरा रिलेटेड है, उसमें ये चीज मिला था, अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है. हाँ, वो सारे लोग जो लोग अभी एनटीए नेट या तो गेट सीएसआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या तो इसरो साइंटिस्ट ऑटोमेटा थ्योरी, ऑटोमेटा थ्योरी में मिला था क्या? ये मैं बताऊंगा 10 से 20. ओके, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो जो प्रिपेयर कर रहे हो यहाँ पे से इनमें से कितने लोग आज पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया है, तो प्लीज सबको मैं बताता हूँ, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैंने तो नहीं पढ़ाया था, बट ये थ्योरम शैनन्स थ्योरम पढ़ लेना एक बार. हाँ हाँ, प्लीज Your voice is breaking. Sorry, I can't. Have you said data communication? Say yes or no. Sorry, her voice is breaking, but data communication is the right answer. Data communication, that is the part of computer network where you have got this theorem. ठीक है, सबको सुनाई दिया? Joyita, Kashyapi, Ankit, and other guys, please respond. Have you got it? Yes, sir. प्लीज, अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो मैं 2 थ्योरम की बात कर रहा हूँ जो सभी लोग पढ़ लोगे. ठीक है, ये मेरे सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एनटीए नेट हो या तो गेट सीएसआईटी या तो इसरो साइंटिस्ट का एग्जाम दोगे तो उसमें से एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. 2 थ्योरम,
एक याद रखो शेनन्स थ्योरम और एक है नाइक्विस्ट थ्योरम, ठीक है। रिपीटिंग यू अगेन, शेनन्स थ्योरम एंड नाइक्विस्ट थ्योरम, ये दोनों पढ़ लेना। अभी जो मैं फिर से पैटर्न रिकॉग्निशन में आ रहा हूँ, ठीक है। आई एम कमिंग बैक टू द पैटर्न रिकॉग्निशन। Here we are talking about Shannon's theorem and this is related to entropy. याद रखना, ठीक है। Obviously this is a part of physics and mathematics, and but in computer science we maximum times face this entropy word, right? So in information theory, entropy refers to the impurity in groups of samples. Information gain is the decrease in entropy, or information gain computes the difference between entropy before split and average entropy after split the data set based on that given attribute, right? तो इतना ज्यादा आपको इसमें नहीं जाना, बस एक चीज याद रखना, इससे हमें ये पता चलते हैं कि आपने जो डेटा अपसेट आपने कलेक्ट किया था, ये जब क्लासिफिकेशन करोगे तो क्या करोगे, उस डेटा सेट को तोड़ोगे छोटे छोटे सबसेट में, राइट? व्हेन यू गो फॉर क्लासिफिकेशन यू ट्राई टू ब्रेक दैट डेटा सेट इनटू सबसेट, ऐसे ही तो कर रहे हो ना। सबसे पहले पेरेंट नोड, उसके बाद उस पेरेंट नोड का 2 चाइल्ड नोड, सपोज मैं बाइनरी ट्री कंसीडर कर रहा हूँ, उसके बाद उस चाइल्ड नोड्स को क्या कर रहे हो, आप ब्रेक करके जा रहे हो, राइट? तो ये चीज के लिए आप अगर एंट्रोपी को कंसीडर किए हो तो क्या होगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज आवर एएसएम एंड दैट एल्गोरिथम, अगर वो डिसीजन ट्री जिसमें मैं एंट्रोपी को कंसीडर कर रहा हूँ किस चीज के लिए, स्प्लिटिंग पर्पस के लिए, तब हम उसको बोलेंगे आईडीटी, आइटरेटिव डाइकोटोमाइजर, ओके, और डिकोटोमाइजर और डाइकोटोमाइजर। ये आईडीटी एल्गोरिथम जो है ये क्या यूज करते हैं, आपका एंट्रोपी, याद रखना, ठीक है। और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, information gain or entropy of T is equal to minus I goes from 1 to m pi logarithm of 2 to the base pi, where pi is the probability that an arbitrary tuple in T belongs to the class Ci. ये फॉर्मूला के जरिए हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। देखो मैं यहाँ पे जो डिस्कस कर रहा हूँ ये फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो दूंगा उसके लिए आपको यूज करना है, बट जब आप इंप्लीमेंट करने जाओगे ये एंट्रोपी क्योंकि बहुत फेमस है, ये ऑलरेडी कोई एक लाइब्रेरी फंक्शन में मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बट क्योंकि आपको इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में जानना है तो आपको ये समझना जरूरी है कि ये एंट्रोपी कैसे काम करते हैं, राइट? एक चीज आपको पता लग गया कि जब आप एंट्रोपी के जरिए वो डेटा सेट को स्प्लिट कर रहे हो तब उससे जो भी ट्री जनरेट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आईटी ट्री, राइट? नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लो, कुछ नहीं, गेन मतलब इंफॉर्मेशन डी माइनस इंफॉर्मेशन ए डी, पहले क्या था उसके बाद जो हुआ, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, गेन, राइट? देन ये जो मैं डी इंफॉर्मेशन डी यूज कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन डी इज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड टू आइडेंटिफाई द क्लास लेवल ऑफ अ ट्यूपल इन डी, और जो मैं डीजे बाय डी आई यूज कर रहा हूँ, ठीक है, लेट्स सी, ऑफ कोर्स इससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है, डी जे की बात कर रहा हूँ, डी जे मतलब जेड लेवल और जेड पार्टीशन, आपने पूरा डाटा सेट को अलग अलग सबसेट में डिवाइड किया है, उसका मैं जे ले रहा हूँ, जेड वाला ले रहा हूँ, ठीक है। अब उस जेड वाले के लिए जो वेट होगा, मतलब हर एक सबसेट का अपना अपना वेट होगा, ठीक है। वेट मतलब वेट से ये डिटरमाइन होगा कि क्या उस सबसेट का कितना वैल्यू है, क्या उसको मैं कंसीडर करूंगा या नहीं, राइट? सो डी जे बाय टी, इससे उस जेड पार्टीशन का वेट डिटरमाइन होगा, राइट? देन इंफॉर्मेशन है D is the expectation or expected information to classify, required to classify that tuple from D based on the partition by A. तो ये expected level है, right? Then attribute A with highest information gain, that is gain A, is chosen as the splitting attribute at node. Of course, उस attribute से जिससे हमको ज्यादा gain मिलेगा, ज्यादा entropy value मिलेगा, जिसके जरिए हम क्या करेंगे, पूरे डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे, राइट? तो दिस इज द फॉर्मूला
for information gain. How they actually work. ये देख लिया आपने GJ by DA. This is the weight and actually information particular हर एक partition के लिए suppose अपने V में n ले रहा हूँ, n partition कर रहा हूँ, तो 1 2 up to n, तो हर एक का जो भी information होगा हम ये ले रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग वो उसका weight भी कैलकुलेट कर रहा हूँ. अल्टीमेटली इन सबको समेशन कर रहा हूँ. इससे हमें ये मिल गया एक्सपेक्टेड वाला. अब गेन मतलब क्या है? ये जो है पहले से और जो एक्सपेक्टेड हम कर रहे हैं इनको माइनस करो, उससे एक वैल्यू मिलेगा. और हर एक एट्रीब्यूट, ये तो मैं गेन ए ले रहा हूँ एट्रीब्यूट ए, आप ऐसा एट्रीब्यूट सपोज मैं बी सी डी ई जितने भी होगा सबका कैलकुलेट करूंगा और उसमें से जिसका गेन ज्यादा होगा, सपोज मुझे मिला बी के लिए गेन ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, उसके जरिए हम बाकी जितना भी डाटा सेट का वैल्यू है उसको स्प्लिट करेंगे. That's how it works. Okay, so you do one thing, you take a screenshot of these two formulas. Please take it. I hope you have taken it. Now इसका ले लो एक. अब इन दोनों को क्या करना, आज के लिए बस ये जो पहला क्वेश्चन दिया था वो कर लेना और सेकंड क्वेश्चन लिखना नहीं है. आप लोग घर में एक बार देखोगे, मैंने जो अभी समझा दिया ना, इन दोनों को फिर से एक बार पढ़ के देखो, ठीक है? और उसके बाद डिटरमाइन करोगे और मुझे बताओगे पूरा गेन इंफॉर्मेशन गेन समझ में आया या नहीं. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. Right? And I think Joyata asked some question to me. I didn't get your message, Joyata. Don't worry, you just message me, I'll go through it. Okay? তোমাৰ ভয়েসটো ক্লিয়াৰলি অহা নাই, সেইটো কাৰণে মই শুনা নাই পোৱা. তুমি মোলে মেছেজ কৰি দিবা. এতিয়া আহিছিলে, but still I have to go now for 44. It's okay. So I'm stopping it now. Right? We'll meet in the next class. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. আহি আছো. Just 1 minute.